just a second. Yeah. So A is equal to null. If it is null, then second head should be A of next. A of next क्या होता है? Next node होता है. B of next होता है next node. तो अगर मेरा जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1 फिर 2 फिर 3, तो अगर A पॉइंटर यानी मेरा डमी नोड A पे है तो नेक्स्ट विल बी B एंड सो ऑन. सॉरी, अगर मेरा 1 है, A 1 पे पॉइंट कर रहा है, तो A of next will be the next node. Okay. And then if it is true, it will return. Secondly, just a second. Yeah. So I hope that you understood this. If you have any query in the code, you can ask. I'm returning A. A will return simply true or false, okay, in this case, because it is a conditional statement, as you can see. And this code is written in C++. So logic is the same as I said कि दो pointers लिए, जो दो dummy nodes लिए, उसमें मैंने एक को first head यानी first linked list point किया, दूसरे को okay. So what we are doing in the conditional statement here is we are setting A का value या B का A का value true या फिर false. कैसे कर रहे हैं हम? तो पहली बात तो A क्या है? A is the dummy pointer that is for linked list 1. B is the dummy pointer for linked list 2. ठीक है? तो अगर A null को encounter करता है, यानी अगर dummy node में last node को encounter करता है, which is null basically. अभी example I think you can see. So here in this case D1 was encountering null, यानी वो last इस पे आ गया था, linked list खत्म हो गया था. So what it will do? It will go to head of the linked list 2. That is the conditional statement that is given here. That if A equal to null, if the dummy pointer is pointing to null, then move to the second head. जो second head है यानी second linked list का head है, उसको A of next करो. ठीक है? A of next is basically dummy pointer जो next को point करेगा. Got it? Similarly for B, B अगर end तक पहुंच गया तो वो किसे point करना चाहिए? It should point the head of the first linked list. It might be a bit confusing at first, but I hope you're getting it. What we need to do is जब A equal to B आ रहा है, you will return A. That's why the return A is outside of the while statement. So जब A is not equal to B, यानी dummy 1 is not pointing to dummy 2, यानी वो कोलाइड नहीं हो रहे, तब तक वो लूप चलता रहेगा, तब तक वो कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करता रहेगा. If A equals to B, then return A. I hope it was clear now. If you have any doubts, please unmute. I request you to unmute, please. The optimal approach, you need the logic of the code. No, that null one. तो देख बेसिकली ना ये एग्जाम्पल में आई विल एक्सप्लेन यू यूजिंग दिस एग्जाम्पल. ठीक है? सो और फिर लेट मी टेक एन इजी वन, समझ में आ जाएगा. दिस इज 1, दिस इज 2, this is pointing to 8 and this is pointing to 7 and this is pointing to null. Null means linked list खत्म हो गया. सेकेंड लिंक लिस्ट ले रही हूँ मैं 3, 8, 1 and this is pointing here. तो इसमें मुझे 8 जो दिख रहा है, marking it with blue, this is the intersecting node. Correct? Yeah, I'll share the hash code. It's not here right now, but I'll share it after the meet ends. Okay? So ये 8 is the intersecting node. Okay? तो मुझे इस पे मैं क्या करूँगी? I'll create 2 dummy pointers, जैसे मैंने बोला A और B. अब A को मैं कहाँ पे place करूँगी? First linked list के head पे. B को I'll place to the head of the second linked list. Now I'll move them simultaneously. So मैं A को यहाँ पे move करूँगी, B को यहाँ पे move करूँगी, A को again यहाँ पे move करूँगी, B यहाँ पे. ठीक है? And फिर A को यहाँ पे move करूँगी, B यहाँ पे आ गया, फिर A यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे.
अब a का अभी a तो null को point कर रहा है, so where will a move? तो इस कोड में यही लिखा है, if a equals to null, जैसे अभी लास्ट पे वो null पे पॉइंट किया था, एंड a को मुझे कहाँ डालना है, सेकेंड लिंक्ड लिस्ट के हेड पे डालना है. दैट्स व्हाई आई हैव पुट द कंडीशन एज सेकेंड हेड एज a ऑफ नेक्स्ट. ठीक है, तो मेरा जो a ऑफ नेक्स्ट है, यानी ये जो डमी पॉइंटर है, दिस शुड मूव टू द सेकेंड हेड, यानी सेकेंड लिंक्ड लिस्ट का हेड. दिस शुड मूव हियर, राइट. अभी ग्रीन से लिख रही हूँ. अभी मेरा a इधर आ गया, ठीक है. मेरा b तो इधर ही था, a मेरा इधर आ गया, b मेरा इधर से आ जाएगा. फिर अगेन सेम प्रोसेस, b को मैं कहाँ पुट करूंगी अब? आई वांट यू टू आंसर नाउ. 1. 1. It will move to the head of the first linked list. तो b मेरा इधर आ गया. फिर सेम प्रोसीजर, while a और b जब तक कोलाइड नहीं हो रहे तब तक वो लूप में चलता रहेगा. सो a मेरा इधर जाएगा, b मेरा इधर आएगा, फिर a इधर, फिर b इधर, ठीक है. Then again a here, b here. So till the time it comes to a जब मेरा इधर आएगा and b मेरा इधर आएगा. I hope you can. Yeah. So जब मेरा a इधर आएगा एंड b इधर आएगा, यानी वो कोलाइड करेगा, तब जाके आउटपुट, या वेरी गुड, तब जाके आउटपुट मेरा ट्रू आएगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई पुट द व्हाइल कंडीशन एज व्हाइल a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि जब a इक्वल टू b आ गया तो वो डायरेक्टली लूप के बाहर आके रिटर्न a. Why is this optimal? Because इसका जो space complexity है, we are not using extra storage space, so इसका space complexity is O of 1. इसके पहले जो hashing का approach मैंने बोला था, that had the space complexity of O of n. That's why it wasn't considered as the optimal solution. This one has a time complexity of O of 2m, but the space complexity is not extra, means it's not O of n. That's why it is optimal. Okay. So can we move to the next question now? So our next question is cycle detection in a singly linked list. So इसमें again linked list का ही problem है. You are given a singly linked list of integers. Return true if it has a cycle, else return false. So a cycle occurs when a node's next points back to a previous node in the list. So इधर जो example दिया है, इधर नोड 1 2 3, अभी 1 2 3 इसके वैल्यूज है, ठीक है. बट दिस इज ईच ऑफ देम, इफ यू सी नोड्स ऐसे 1 and 1, ईच हैव सेम वैल्यूज, बट जरूरी नहीं है कि वो नोड्स सेम है. ओके, सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट. पहली बात कि साइकिल होता क्या है, अभी दिस 3 थर्ड जो लास्ट नोड दिख रहा है, दैट इज पॉइंटिंग बैक टू 1, सो दिस इज नोन एज अ साइकिल. अगर ये ऐसा होता सिंगली लिंक्ड लिस्ट 3 and this is pointing to null, so this does not have any cycle, and that's why it should return false. Your code should return false. Okay, so cycle detection के लिए what will be my first approach, यानी brute force approach. ठीक है, so brute force approach will be hashing. How? Now what we'll do is we'll use a hash table for storing the nodes. यानी मैं यही एग्जांपल ले लो, आई क्रिएट अ हैश टेबल, उसमें फर्स्ट नोड करूंगी, सेकंड और फिर थर्ड, ठीक है. और उसके बाद मैं चेक करूंगी कि फिर उसके बाद मैं इंटरेट करूंगी वो लिंक्ड लिस्ट से, और अगर वो लिंक्ड लिस्ट की वैल्यू नोड की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो इट शुड प्रिंट एज ट्रू, और एल्स इट शुड प्रिंट एज फॉल्स, लाइक रिटर्न फॉल्स. तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n, क्योंकि मैं लिंक लिस्ट एक ही बार ट्रैवर्स कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्रैवर्सिंग थ्रू द लिस्ट, आई एम सेटिंग द वैल्यू इन अ हैश टेबल, एंड देन आई एम आल्सो चेकिंग कि वो नोड, इफ दैट नोड इज इक्वल टू समथिंग और नॉट, एंड दैट्स व्हाई उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n, बट इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स O of n again. Why? Because I'm using extra storage space.
to store the nodes, right? That's why this cannot be the optimal approach, optimal solution for this problem. तो इसका सेकंड अप्रोच क्या आता है? अगेन जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा ही सिमिलर है. वी आर क्रिएटिंग टू पॉइंटर्स, so I'll let us two pointer approach. Okay. What I'll do is I'll iterate till the last. Okay, first ये बता देती हूँ कि we'll create two pointers. एक होगा फास्ट, एक होगा स्लो. तो इसे ये भी कह सकते हैं फास्ट एंड स्लो पॉइंटर अप्रोच. ठीक है. मैं क्या करूंगी, फास्ट को 2 स्टेप से आगे बढ़ाऊंगी, स्लो को 1 स्टेप से आगे बढ़ाऊंगी. कहाँ से? थ्रू द लिंक लिस्ट. ठीक है. एंड माय फास्ट पॉइंटर एंड स्लो पॉइंटर विल पॉइंट इनिशियली टू द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, क्योंकि मुझे इसमें अभी एक ही लिंक लिस्ट गिवन है. वी डोंट हैव टू लिंक लिस्ट एज इन द as there was in the previous question, right? So I'll show that this is 1, this is say 3, this is 4, 5, and this is 6. Okay, so this is my linked list. 6 is pointing here. तो ये एक cycle हो गया. ठीक है. So what I do is I will point my slow pointer here, and I'll also point my fast pointer here. ठीक है. मैं दोनों को हेड पे पॉइंट करूंगी, एंड फिर मैं स्लो पॉइंटर को 1 से आगे बढ़ाऊंगी और फास्ट पॉइंटर को 2 से आगे बढ़ाऊंगी. ठीक है. एंड जहाँ पे मेरा फास्ट एंड स्लो पॉइंटर कोलाइड करेगा वो मेरा दैट विल बी माय बेसिकली साइकिल का पॉइंट. यानी 6 जो मेरे को 4 पे पॉइंट कर रहा है इस एग्जांपल में, दिस इज पॉइंटिंग हियर. तो जब मेरा स्लो एंड फास्ट वापस कोलाइड करेगा, दैट विल बी द पॉइंट वेयर आई विल अंडरस्टैंड कि दिस इज अ there is a cycle in the linked list. ठीक है. So I'll show you the code directly. Yeah. So as you can see, bool detect cycle node star head. Star head means pointer लिया मैंने. एक linked list है हमारे पास. अभी सबसे पहले मैं if condition लगा रही हूँ. Why? Because I'm checking if the head is null, or if the linked list contains a single element, you will have to return false. Means इसका मीनिंग क्या है कि अगर लिंक लिस्ट नल है तो फिर ऑब्वियसली क्या ही चेक करोगे कि साइकिल है या नहीं, राइट? सो रिटर्न नल. बट अगर लिंक लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट है तो वो सिंगल एलिमेंट तो साइकिल लिंक लिस्ट नहीं हो सकता, राइट? तो फिर भी यू विल रिटर्न नल. दैट्स व्हाई आई पुट इफ हेड इक्वल टू नल, और इफ हेड्स नेक्स्ट, यानी फर्स्ट एलिमेंट के बाद का जो एलिमेंट है अगर वो भी नल है तो रिटर्न नल. ओके. If it is okay, in this case I'm not returning null, I've written return false. Next thing what I do is if there are more than one element if there is more than one element in a linked list, you'll move ahead and you'll create 2 pointers, that is a slow pointer and a fast pointer. Again मैंने बोला था कि मैं दोनों पॉइंटर को कहाँ पॉइंट करूंगी, I'll point it to the head of the linked list, right? So node of fast is equal to head, node of slow is equal to head again. Now while fast is not equal to null and fast of next is not equal to null, I'll tell you what this condition means. But पहले हम while loop में जाएंगे and उसके बाद एक second, yeah, first we'll move to the while loop and then we'll check, we'll increment the fast pointer by 2, we'll increment the slow pointer by 1. एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो फास्ट और स्लो पॉइंटर कोलाइड करेंगे और उससे मुझे पता चल जाएगा कि एक वो लिंक लिस्ट में साइकिल पॉइंट हो रहा है, यानी वो वापस किसी नोड को पॉइंट कर रहा है जो ऑलरेडी उस लिंक लिस्ट में था. ठीक है. सो we'll do increment fast by 2 steps and slow by 1 step. So fast is equal to fast of next and next, slow equal to slow next. Arrow use कर रहा. If fast equal to slow, you will return true. If not, then loop के बाहर आके return false. ठीक है. So केस में ड्राई रन अगर करेंगे, अभी मेरा while स्टेटमेंट था कि while fast is not equal to none, यानी अगर मेरा जो फास्ट पॉइंटर है अगर वो लास्ट इसे पॉइंट नहीं कर रहा है, यानी अगर वो लिंक लिस्ट के बाहर नहीं गया है, एंड fast of next is also not equal to null, यानी
मेरा जो फास्ट के नेक्स्ट पॉइंटर है, यानी अगर मेरा फास्ट अभी फर्स्ट से पॉइंट कर रहा है, दिस इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, इफ दिस इज ऑल्सो नॉट पॉइंटिंग टू नल, यानी इस केस में भी इट इज पॉइंटिंग टू अ नोड, राइट, इट्स नॉट पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट, तो तब तक तुम लूप चलाओ, यानी यू विल रन द लूप till the last element of the linked list, ठीक है, and you will check if fast equal to slow, यानी if node का node is same, तो अभी मैं slow को इधर लाऊंगी and I'll bring fast 2 times, यानी fast इधर आएगा, फिर slow मेरा next पे जाएगा, यानी एक स्टेप बढ़ाया, fast को इधर लाया, ठीक है, अभी fast का next is pointing to null, right, तो मैंने इधर कंडीशन डाला था कि while fast is not equal to null and fast of next is also not equal to null, तो फिर ये आ गया वापस लूप में, and then it will move here, slow 1 से जाएगा, fast again 2 से जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब fast और slow कोलाइड करेंगे and then you will get कि वो एक साइकिल लिंक लिस्ट है, okay. So can any one of you let me know if you understood the approach? लास्ट में फास्ट का नल तो नेक्स्ट तो फोर्थ को पॉइंट करेंगे। हाँ, या दैट्स व्हाट, अभी इसमें मैंने इधर गलती से इधर पे पॉइंट किया, या इस केस में फास्ट इधर आ गया, तो अभी ये 6 4 को पॉइंट कर रहा था, तो मेरा फास्ट इधर आ गया, बट तब तक मेरा स्लो आगे चला गया था, राइट, लेट्स डू इट अगेन वंस, ओके, इधर मेरा स्लो था, इधर मेरा फास्ट था, अब मैं स्लो को 1 से आगे बढ़ाऊंगी, स्लो इधर आ गया, फास्ट को 2 से आगे बढ़ाऊंगी, फास्ट इधर आ गया, slow is here now, S, fast is here, and my 6 was pointing to 4, right, yeah, अभी इसके बाद स्लो मेरा इधर आ गया एंड फास्ट कम्स इधर, फिर मेरा अगेन स्लो इधर आ गया, फास्ट मेरा अभी ये जो 4 है, 4 के बाद 5 और 6 को पॉइंट कर रहा है, वो अगेन इधर पॉइंट करेगा 6, ठीक है, तो उसके बाद वो वैसे लूप चलता जाएगा एंड जब तक मेरा स्लो और फास्ट कोलाइड नहीं करता तब तक वो लूप चलेगा, एंड उसके बाद वंस इट गेट्स टू द पॉइंट वेयर स्लो इज इक्वल टू फास्ट, यानी वो नोड को कंपेयर कर रहा है, यानी मेरा नोड इक्वल आ गया, तो तब जाके इट विल रिटर्न टू। Is it a bit confusing? मुझे भी लगा थोड़ा confusing explain करते वक्त, but I think if you see the code again now, you'll get it. So, any doubts? The code will be shared. The recording will also be shared, and you can also share your doubts. Session के बाद भी अगर इसमें वापस doubt आता है तो you can share it on the Bigo group. Yeah, time complexity is O of n. And इसमें space complexity is O of 1. पहले हैशिंग का अप्रोच यूज करते तो उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आता, इसीलिए वी आर नॉट यूजिंग हैशिंग अप्रोच, नहीं तो वो भी एक अच्छा अप्रोच है, बट यू नीड द ऑप्टिमल अप्रोच, राइट, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 2 पॉइंटर मेथड. सो एनी डाउट और शैल वी एंड द मीटिंग? यार कोई भी अनम्यूट करके बोल रहा है, बहुत शांत शांत लग रहा है. Yes. Yeah, this meet happens daily from Monday to Saturday. And बिगो ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लिया होगा, राइट, तो उसमें रोज लिंक्स आते रहेंगे, प्रॉब्लम की भी एंड नीट की भी लिंक आएगी, उसके बाद सोल्यूशन भी दिया जाएगा. सो रोज इफ यू सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स डेली ना, एक एक करके यू कैन कंप्लीट योर DSA विद इन लाइक 90 days, मतलब एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स तो सीख ही जाओगे. एंड गौरीश सर भी है हमारे साथ. सर एनी टिप्स?
माय गॉड. टिप्स इज फॉलो डेली डिस्कशन गाइस. इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आ जाओ. So चलो. yeah, if you all don't know who voice sir is, sir मैं बताऊँ या आप बता रहे हो? अरे भाई मत बताओ गाइस. C3 God है voice sir, 5 star on CodeCell. And if you have any doubts, you can definitely ask right now, or you can post on the group. And रोज मीटिंग ज्वाइन कर लेना, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. आई थिंक इतना काफी है. So let's end the meeting then. Yes. Let's keep doing DSA. Have a great day ahead. Bye. Good night, guys. Bye.